شعبۂ خبر کی پیشکش پروگرام حالات حاضرہ کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مبشر رفائی کا خلوص برا سلام قبول فرمائیں۔ ناظرین، پروگرام کے ہر شمارے میں ہم مختلف موضوعات پر ماہرین کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جو موضوع سے متعلق ضروری جانکاری ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ حال ہی میں پارلیمنٹ میں فارمرز بلز 2020 انٹروڈیوس کی گئی۔ بلز کو متعارف کرنے کا مقصد کسانوں کو بااختیار بنانا اور ان کی آمدن میں اضافے کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے علاوہ آتم نربھر ابھیان کے تحت ہارٹیکلچر شعبے کے لیے ایک آپریشن گرین کے تحت ایک ایمنسٹی دی گئی ہے۔ تو پروگرام کے آج کے شمارے میں ہم ہارٹیکلچر کے تعلق سے فارمرز بلز 2020 پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آپریشن گرینز ہے کیا۔ تو آج کی اس نشست میں، آج کی اس محفل میں جو مہمان ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرائی دیتا ہوں۔ میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر جناب اعجاز احمد بٹ صاحب، اور ان کے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب محمد یوسف ڈار صاحب۔ آپ وادی کشمیر کے ایک ترقی پسند فروٹ گروور ہیں۔ دونوں مہمانوں کا استقبال ہے اسٹوڈیوز میں۔ اعجاز صاحب، ہم نے فارمرز بلز 2020 کی بات کی، کچھ چند روز قبل ہم نے اس میں ایگریکلچر کے تعلق سے بات کی تھی کہ کسانوں کو کیا فائدے مل رہے ہیں، لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو لوگ ہارٹیکلچر سے وابستہ ہیں، خاص کر فروٹ گروورز ہیں یا باغ مالکان ہیں، ان کو فارمرز بلز 2020 سے کیا فوائد مل رہے ہیں؟ سب سے پہلے مبشر صاحب، میں السلام علیکم ناظرین کو، آپ کو سب کو میری طرف سے۔ تو جہاں تک یہ آپ نے دیکھا کہ کووڈ جو کورونا وائرس چلا جی، تو اس میں ہر ایک سیکٹر افیکٹ ہو گیا، متاثر ہو گیا۔ تو نیچرل سی بات ہے کہ ہارٹیکلچر، ایگریکلچر، اس پر بھی ایک منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے اس میں سپریٹ ایک وہ آتم نربھر بھارت ابھیان اس کا اناؤنسمنٹ کیا۔ اس سے قبل ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو فارمرز بلز، کیا یہ ان سے، فارمرز بلز تو ان سے الگ ہیں، آتم نربھر ابھیان کا جو پروگرام ہے، فارمرز بلز کے تعلق سے ہم جاننا چاہیں گے کہ مختصراً انٹروڈکشن دیں، یہ بلز ہیں کیا اور کسانوں کو کیا فائدہ ملے؟ جو فارمرز بل ہے بیسیکلی یہ بھی ریسنٹلی پارلیمنٹ میں پاس ہو گئی جی۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے جو ہم وہ کمیشن ایجنٹس کا رول یا ایگریگیٹر کا، جس کو ہم بچولیا کہتے ہیں، اس کا جو رول ہوتا ہے میڈیٹرز کا، تو باہر کی گروور اور جو ان کا بائر ہوتا ہے، پھر بات باہر کی ریاستوں میں بڑا استحصال ہوتا تھا اس کا۔ یہاں ہماری یہاں جموں کشمیر یوٹی میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا اس کا ایفیکٹ، لیکن باہر شاید وہ جب اس کا وہ فروٹ یا اس کی ویجیٹیبل خریدتے، اس کے ساتھ وہ اس کے وہ لینڈ بھی ہڑپ کرتے تھے، ایسا وہاں وہ ظلم چل رہا تھا۔ اس کو روکنے کے لیے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے یہ پارلیمنٹ میں بل پاس ہو گیا، یہ جو فارم بل ہے، تو اس کے ریزلٹس انشاءاللہ اچھے آئیں گے اور آ بھی رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اسی سلسلے کی ایک کڑی کے ہم نے جو سنڈے فروٹ سیل اینڈ شو کا سلسلہ کیا، جو ابھی پچھلے 2 ہفتے سے تقریباً 2 ہفتے سے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اس سنڈے کو بھی چلے گا۔ تو کوشش اس میں یہی کی گئی ہے کہ ہم اس گروور کو تھوڑا اس آپریشن گرین یا دوسری جو سکیمز ہیں اس کے فائدے کے لیے، ایک تو اس کو ہم اس کی طرف توجہ دلائیں گے، اس کو باخبر کریں گے۔ دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ جو میڈیٹر کا رول ہے، پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا۔ ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں۔ پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا۔ وہ آنے والے وقت میں تھوڑا سا ختم ہو جائے یا کم ہو جائے۔ جی یوسف صاحب، چنانچہ آپ ایک فروٹ گروور ہیں، آپ کے ایپل آرچرڈز ہیں اپنے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو فارمرز بل انٹروڈیوس ہوئی ہے، آپ جب اپنی فصل بیچتے ہیں تو کتنی آسانی اب ہوئی ہے ان بلز کی وجہ سے
یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے جب ہم اپنا مال منڈیوں میں بیچتے تھے جی تو وہاں کمیشن ایجنٹ جو تھے وہ ہم کو اس سال کرتے تھے کیونکہ وہ 12% کمیشن لیتے تھے. جی اس کے بعد ہم کو APMC دینا پڑتا تھا. وہاں ایک کمیٹی ہوتی تھی, وہ سالانہ جو آپ کو کچھ چارجز دینے چارج دیتے تھے. جی گورنمنٹ نے جو یہ APMC منڈیوں کا جو رجحان ان کو ختم کرنے کے لیے گروور جو ہے وہ خود اپنا مال بھیجے ایک خریدار کو. جی انہوں نے ایک سکیم لانچ کی, ہم اس کو اپریسیٹ کرتے ہیں, جو بل پاس ہوئی ہے مودی جی نے کی ہے. یہ ایک گروور کے لیے, ایک کسان کے لیے کہ اس کو یہ فائدہ آئے گا کہ اس کو پہلے ہی جو 100 روپے میں سے 12 روپیہ وہ کاٹتا تھا کمیشن, وہ اس کو اپنے گروور کو اپنے جیب میں گروور کو ہی ملیں گے. اب یہ گروور کو ملیں گے. ای مارکیٹنگ جو اسکیم شروع کی ہے اس میں گروور کو اپنی رجسٹریشن کرنی ہے. گورنمنٹ اس بل میں یہ ہے کہ گورنمنٹ ذمہ دار رہے گا اس کے پیسے کا. جی پیسہ گروور کا جو پیسہ اس میں, جی بالکل گروور کو کوئی خطرہ نہیں ہے پیسے کا. اس کو جو مال لے گا اپنا اس کے کھاتے میں یہ پیسہ جائے گا. یوسف صاحب اس میں اور 3 چیزیں ہیں. جی 3 چیزیں یہ ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ اب بائر مل گیا. جی کیونکہ پہلے بائنڈنگ تھی, ہمیں منڈیز میں لینا منڈی تھا, میں ہی جانا تھا, منڈی میں جانا ہی جانا تھا. ہم باہر بیچ نہیں سکتے تھے اپنا مال. جی ہمیں یہ بائنڈنگ تھی. اب اس کو اس بائنڈنگ کو لفٹ آؤٹ کیا گیا, اس کو اٹھایا گیا اس بین کو. جی ہم بیچ سکتے ہیں. جو اب خریدار ہے, خریدار ہمیں پیسے بھی دے سکتا ہے ان کیش, خریدار ہمیں کوئی مشینری بھی دے سکتا ہے, جی اور خریدار ہمیں فرٹیلائزر بھی دے سکتا ہے. گروور کو پیسے کے بدلے وہ کوئی ماڈرن مشینری, ہاں کوئی اچھا سا فرٹیلائزر دے سکتا ہے, کوئی اچھا کوالٹی والا پیسٹیسائڈ بھی دے سکتا ہے, وہ بھی اس میں گزارش رکھی گئی ہے. جی تو اس سے جو ہے یہ جو فارمرز بلز ہیں, فارمرز پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس بل اس میں ایک ہے, تو کیا اس کی وجہ سے یہ, اور کیا ان کو یہ رہتا ہے کہ اگر کوئی فارمر منڈی میں ہی جانا چاہے تو کیا اس کو اختیار ہے یا ضروری ہے کہ اب منڈی سے باہر بھی؟ ابھی ہم امیجیٹلی منڈی کو ہم نہیں کر سکتے ہیں الگ. منڈیز کا اپنا ایک رول ہے اور ایک اپنا سسٹم ہے. ابھی ہم منڈیز کو ختم نہیں کر رہے ہیں. جی لیکن یہ جو ہے یہ ایک ایڈیشنل اس کو فیسلٹی ہے. یہ میں نے پہلے ہی ذکر کیا, زیادہ یہ استحصال جو وہ باہر کی ریاستوں میں ہوا کرتا تھا. جموں کشمیر میں تھوڑا کم, جموں کشمیر میں تب بھی ٹھیک چل رہا ہے. یعنی منڈیز کا رول ابھی رہے گا, ابھی منڈیز کا رول رہے گا, لیکن باہر جو اسٹیٹس ہیں دوسرے ان میں زیادہ استحصال ہوا کرتا تھا. جی اس دوران یوسف صاحب نے ایک ذکر کیا ای مارکیٹنگ کا, تو ای مارکیٹنگ کے بارے میں آپ ہمارے جو فروٹ گروورز اس وقت جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیے کہ یہ ای مارکیٹنگ ہے کیا اور کیسے فائدہ لیا جا سکتا ہے اس سے, گروور کیسے فائدہ لے سکتے ہیں؟ یہ منڈیز میں اب کوشش کی جا رہی ہے. تو پہلے ہم منڈیز میں وہی ایسے بیچتے تھے رومال استعمال کر کے, لیکن اب آن لائن ہو جائے گا یہ. جی یہ یہاں پائرم پورہ میں یہ ہو گیا ہے, یہاں نروال میں بھی ہو گیا ہے, تو دوسری منڈیز کا بھی یہ چل رہا ہے کہ پہلے جو منڈیز میں ایک چلن تھا, یوسف صاحب اسے باخبر ہوں گے کہ وہ ایک جو بائر ہے وہاں پہ وہ اپنے ہاتھ پہ رومال ڈالتا ہے اور پھر سیلر جو ہے وہ اس کی انگلیاں کچھ ایسا ان کا کچھ گنا کے یہ پرائس سمجھتے تھے آپس میں اور دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. تو یوسف صاحب کیا سچویشن ہے اس وقت اگر ای مارکیٹنگ ہوتی ہے؟ ہم اس لیے گورنمنٹ نے جو ہماری جو ڈیمانڈ تھی کہ ایک سپورٹ پرائز ملنا چاہیے, جی گورنمنٹ نے وہ بھی پاس کیا ہے اس بل میں, وہ بھی ہے کہ ایک منیمم سپورٹ پرائز اس کے اوپر مال بھیجنا ہے. اگر اب مال منڈیوں میں بھی جائے گا وہاں آرتی کو اب ضروری ہے کہ اس کو پہلے منیمم یہ پرائز جو ہے اس کے اوپر اس کو بھیجنا ہے, اور ہمارے گروور کو فائدہ آئے گا اگر کوئی باہر بھی مال لے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک منڈی میں ایک گروور خود اپنا مال نہیں بیچ سکتا. آج اس کو یہ لاسن جو ختم ہوئی APMC ایکٹ جو انہوں نے اس بل میں ختم کیا, ابھی تو اس کا رجحان چلے گا, آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. گروور تو منڈیوں میں خود جائے گا اور وہاں خریدار اس کو آئے گا, اس کو ہر ایک خود اپنے مال کا اپنا خریدار, اپنا مالک ہے. ہم یہ جس طرح یہاں سٹارٹ کیا ہمارے ڈائریکٹر ہارٹیکلچر صاحب نے, اعجاز احمد بٹ صاحب نے, اس نے یہاں پر شروعات کی یہاں ہمارے راج باغ میں, اس نے وہ مال شو لگایا اور یہاں پر بھی اس نے کوشش ایک کی کہ یہ جو ہمارے یہاں خریدار ہے
यहाँ भी हमारे स्टॉलों पे जो माल चाइना का आता था, यूएसए का आता था, और हमारे ब्यूरोक्रेट तबका या अमीर तबका वो जाते थे ले लो जी, क्योंकि उन्होंने उस हमारे माल में अभी तक मार्केटिंग नहीं हुई थी। इस वजह से आज यहाँ के लोग जो यहाँ भी अमीर तबका है, एक ब्यूरोक्रेट तबका है, एक ऑफिसर है, उनको ये पता चलेगा कि यूएसए, चाइना और हमारे कश्मीर का माल इसमें कौन सा क्या फर्क, कितनी फर्क, और ये लोग खुद ये माल आप खरीदेंगे क्योंकि इस माल में टेस्ट है। दुनिया में वर्ल्ड क्लास माल हमारे एप्पल में है, कश्मीर में है। ये यूएसए में वहां जो है वो लगाते हैं, सिर्फ उसमें वो रंग लगाते हैं, वो हमारा नहीं। दरअसल असल में बात ये थी कि जो हमारा यहाँ पे सेब आता है वो एक मखसूस सीजन में हमको यहाँ पर दस्तयाब रहता था पहले। अब चूंकि कोल्ड स्टोरेज का वो चलन चला है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एजाज साहब उससे पहले में आपने संडे ये जो बिल्स का मकसद ये भी है कि बायर और सेलर को एक दूसरे के रूबरू कराया जाए, आमने सामने लाया जाए, वो आपस में बात करें और जिस तरह भी खरीद फरोख्त हो सकती है वो करें। तो संडे मार्केट की आपने अभी जिक्र किया कि संडे मार्केट जो फ्रूट्स का अब लग रहा है श्रीनगर में, वो आपके हॉर्टिकल्चर कॉम्प्लेक्स में ही लग रहा है और अभी तक शायद 2 संडेज हो गई है। तो उसके बारे में बताइए कि वो उसका क्या सिस्टम है और किस तरह के मतलब जो बायर है वो किस तरह जा सकता है वहाँ पे और कैसे खरीदारी कर सकता है। अभी मुबशर साहब मैं नहीं कहूँगा कि एक बड़ा कोई है इशू, मतलब जो हमने कुछ बड़ा दावा कर सकते हैं। एक छोटी सी शुरुआत है ये जी। इसमें यही मैंने कहा है कि ये शुरुआत जो है ये इंशाल्लाह इन लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द ग्रोवर चलेगी और उसको एक्सपोजर देने के लिए, उसको अच्छा बायर देने के लिए चलेगी। तो अभी शुरुआत है। हम चाहेंगे क्योंकि अभी ये कोविड का सिलसिला चल रहा है, अभी बाहर के बायर शायद यहाँ विज़िट करना नहीं चाहेंगे। हमने उनको इनवाइट नो डाउट किया भी है। हम चाहेंगे कि इन लॉन्ग रन वो बाहर के जो ग्रोवर ये बायर्स जो हैं वो यहाँ पर आएँ। तो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम वर्चुअल मोड में एक मीटिंग करेंगे, जो हमारे बड़े बड़े ग्रोवर हैं, ये इसके ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं और जो बाहर के बायर हैं, एक वो डिजिटल मीटिंग भी हम करेंगे। और हमने उनको वैसे भी दावत दी है कि अगर वो आना चाहेंगे हम उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे बायर्स को, तो वो देखेंगे कि जो हमने अपना क्वालिटी इम्प्रूव किया है, जो हमने ग्रेडिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री इम्प्रूव किया है। अगर आप भी अगले संडे को आएंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमने मिनी टाइप के वो ग्रेडिंग इंट्रोड्यूस की है। हम डिस्ट्रिक्टों में ग्रेडिंग लाइन मशीनें लगाई हैं, शुरुआत हो गई है, नारथ में भी लगी हैं, कोल्ड स्टोरेज में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। तो हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में क्लस्टर में ग्रोवर लगाएं अपने बागों में ये मशीन, हम उस पर सब्सिडी भी दिया करेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे जहाँ जितनी ग्रेडिंग हम इम्प्रूव करेंगे, जितनी पैकेजिंग हम इम्प्रूव करेंगे, उतना हमारा ये जो शोबा है, ये जो सेक्टर है, ये ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा फरोग मिलेगी। जी बिल्कुल। लेकिन एजाज साहब इसमें एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने जब ये संडे बाज़ार शुरू किया तो आपने, आपके महकमे का और आपका दावा ये था कि ये संडे मार्केट की तर्ज पर लगेगा। तो आम इंसान के जहन में ये बात आई कि संडे मार्केट में अच्छी खासी चीज़ें दस्तयाब रहती हैं और वो भी बहुत सस्ते दामों पर। तो क्या ये उस तरह का मेला लगता है यहाँ पे? मुबशर साहब बिल्कुल उसी तरह का है। कोशिश हमने की स्टार्ट से ही 11 अक्टूबर से ही थोड़ा सा कल्चरल भी रखा, लेकिन शायद लोगों को पता नहीं राजबाग हार्टिकल्चर कॉम्प्लेक्स कहाँ है। मेरी बदकिस्मती है, ये प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के सामने है, बिल्कुल शहर के सेंटर में है। जब अगर पेड़ पौधे वगैरह उनकी सेल वगैरह करते हैं वहाँ से, और हमने वहाँ पार्किंग का भी अच्छा खातिर खा इंतजाम भी रखा है, कुछ बैठने का भी इंतजाम रखा है। ये होटल इंस्टीट्यूट जो है, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के बिल्कुल बगल में है। तो एक अच्छी जगह है। और हम कोविड में बंद रहे इतने महीने, जाना चाहे फैमिली के साथ वो कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जाना चाहे, हम इंशाल्लाह इसको टाइमिंग भी बढ़ाएंगे। पहले हमने 4 बजे तक रखा था, हम इसको शाम 5 बजे तक बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम भी रखने की, ताकि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाए। जी यूसुफ साहब, ये जो संडे मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो शायद आपने भी उसमें पार्टिसिपेट किया होगा। तो उसमें किस किस्म के मेवे रखते हैं और आप, और मतलब किस तरह बेचते हैं? क्योंकि अगर आम आदमी वहाँ पर आता है, तो मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले एजाज साहब से ये पूछ रहा था कि आम आदमी तो सेब के ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 किलो लेगा, तो आपके पास बड़ी बड़ी पेटियां, बड़े बड़े डब्बे रहते हैं, तो किस तरह बेचते हैं वहाँ पे आप? पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता
बढ़ता है इंडिया। देखो, हम डायरेक्टर हार्टिकल्चर जो एजाज साहब है, जी। इसने ही शुरुआत की है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप देख लीजिए, जब तक ये प्रोडक्शन हमारी 22 लाख मीट्रिक टन है, मगर इस वक्त 22 लाख मीट्रिक टन मार्केट, अब जब थ्रू आउट इंडिया हम देखते थे तो वहाँ पर इसकी इतनी खपत नहीं रहती थी, मार्केट में ज़्यादा माल जाता था। मार्केटिंग के लिए कुछ नहीं हुआ आज तक। मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट इसके लिए रखा था गवर्नमेंट ने, मगर वो डिपार्टमेंट मुझे लगता है उसको वाइंड अप ही करना चाहिए था, क्योंकि उनका काम है थ्रू आउट इंडिया में उनके ऑफिस है, मगर ऑफिस सिर्फ नाम के हैं। मगर हम एजाज साहब को एप्रिसिएट करते हैं, अपनी तरफ से खुश आमदेद करते हैं कि इसने एक शुरुआत की मार्केटिंग के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारे एप्पल को ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत है जी। सबसे ज़्यादा जब मार्केट होगा, इसने ये 12 महीने ये चलाएगा इसको। अब इसने यहाँ लोकल में ये मार्केटिंग शुरू की, अब ये थ्रू आउट इंडिया में दावत देगा बड़े बड़े बायरों को जी। और जब वो बायर यहाँ आएंगे, हमने ये शुरुआत पहले की, क्योंकि यहाँ जो हमने मंडियाँ कायम की, हमारे साथ इस साल होता था यहाँ स्टेटों में, दिल्ली में, कलकत्ता में, हमारा वहाँ माल नहीं बिकता था। जब हमने यहाँ मंडी तक कायम की, सोपोर में, पारमपोरा में, और हमने खुद माल भेजा अपने लोगों का, और हमारे लोग खुश हुए, तब वहाँ से यहाँ कुछ आए। मगर इस कोविड की वजह से इस साल तो खरीदार नहीं आए। मैं अब एजाज साहब ने ये शुरुआत की कि यहाँ लोकल, तो ये संडे मार्केटिंग जी, बिल्कुल, जो आम लोग यहाँ पर आएंगे। साहब, एक चीज़ हम और सोच रहे हैं इंशाल्लाह, ये हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी कह रहे थे, नवीन चौधरी साहब की, हम आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि जो हमारी बड़ी सिटीज़ हैं बाहर, मुंबई या दूसरी, तो कोशिश करेंगे वहाँ भी अगर हमारे ये फ्रूट शो होते हैं तो इससे भी ये थोड़ा हमारा इसी तर्ज पर, जिस तरह ये यहाँ पे ये संडे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश रहेगी कि वहाँ भी थोड़ा सा ये चलन हो। मैं पिछले साल के इसी साल फरवरी में मैं गया केरला में, शायद कुछ लोगों ने पहली बार फ्रूट देखा वहाँ पर, उन्होंने फ्रूट देखा नहीं था वहाँ पर एप्पल। फ्रूट मतलब हमारा फ्रूट यहाँ का, उनको पता ही नहीं था कि कश्मीर क्योंकि मंडीज एवरीवेयर नहीं है, हमारी मंडीज हर एक स्टेट में होनी चाहिए अभी। तो ये मार्केटिंग की बात जो अभी यूसुफ साहब कर रहे थे, ये मार्केटिंग का ही मसला है कि मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो रही है। और अगर हमारा इतना प्रोडक्शन है तो ये तो पूरे कम से कम अपने मुल्क में तो हर एक जगह मंडी होनी चाहिए। जैसे यूसुफ साहब ने कहा अभी कि हमारे फॉरेन कंट्रीज से यहाँ पे सेब आते हैं और लोग वो खाते हैं, तो उसके लिए जैसे उन्होंने कहा कि हमें अब अपने सेब को प्रमोट करना होगा, कम से कम हमारे यहाँ फॉरेन सेब ना आए। हाँ ठीक है, आ जाए, हम ये इस डिनाई नहीं करते, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन अपने सोसाइटी में, अपने यहाँ पे हमें हमारा सेब ज़्यादा फेमस हो और पूरे साल दस्तियाब रहे। उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, और कम से कम रेट्स भी हम कम्पीट करें जो बाहर से सेब आते हैं, तो उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं महकमा जाती सतह पर? हम हर सतह पर कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को प्रमोट करने की जी। जो मैंने गुजारिश की पहले कि हम वो ई मंडीज़ का ई नेम वो भी इसमें है कि मंडीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा चलन हो जी, और न सिर्फ कुछ मखसूस डिस्ट्रिक्टों में बल्कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये हो जाए। और अब लोगों का भी एक मूड बना है, मिजाज बना है कि डिमांड है कि हर एक जगह, हर एक छोटे बड़े डिवीज़न में, सब डिवीज़न में ये मंडीज़ चले, क्योंकि जितने हमें ज़्यादा कलेक्शन सेंटर्स बनेंगे उससे ज़्यादा हमारा रेट बढ़ेगा, उससे ज़्यादा मार्केट बनेगा, और उससे जो किसान को फ़ायदा है वो आएगा, और जो वो एग्रीगेटर या कमीशन एजेंट का वो रोल कम रहेगा जी। तो यूसुफ साहब, अभी जो हमारे यहाँ पर सेब उगते हैं उनमें ज़्यादा जो तादाद आती है या ज़्यादा क्वांटिटी जो आती है वो है या रेड डिलीशियस या कुल्लू डिलीशियस। हमारी अपनी जो रवायती अक़साम जो थे सेब के, ख़ासकर उनमें अंबरी सेब बहुत मशहूर सेब था हमारा कश्मीरी सेब, वो तो ख़त्म हो गया है, कहीं पर दिखता नहीं है। उसके लिए क्या, और हाई डेंसिटी को प्रमोट किया जा रहा है, पेड़ छोटे रहें, ज़्यादा फसल हो, ठीक है, उससे इनकम ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन हम रवायती सेबों को, अपनी खुद के यहाँ के कश्मीरी सेबों को फ़रोग़ देने के लिए या क्या उनको कुछ इकदाम कर रहे हैं आप बहैसियत एक फ्रूट ग्रोवर के, अगर आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारी जो ट्रेडिशनल यहाँ हमारी फ्रूट्स जो थे जी, हमारा अमरी, कश्मीरी अम्बर, वो इस वक्त थ्रू आउट इंडिया में मशहूर था जी। शाही मतलब उसका बहुत नाम एक था, कश्मीरी एप्पल, कश्मीरी अम्बरी जी। हमारा एक कस्म तरीर छोटा जी होता था, आज वो बिल्कुल वैरायटी है गायब हो गई। अमेरिकन भी एक हमारी किस्म हुआ करता था हमारा। हमारी कुछ नई वैरायटियाँ हैं, हमारी पुरानी वैरायटी, हमारी जो सिकास्ट यूनिवर्सिटी है, ये उनका काम था
इनको अपग्रेडेशन करनी नहीं, बाग वालों ने भी वो पेड़ काट डाले हैं इसमें रुफाई साहब मैं गुजारिश करूंगा। देखिए, जब आप बाग वालों ने ये सोचा कि भाई रेड डिलीशियस क्लू डिलीशियस से हमारी आमदनी बढ़ रही है, तो आपने तो वो पेड़ काट ही डाले ना कहीं रखना चाहिए। आपको अच्छा मार्केट आता है, मगर उसमें सिर्फ एक ही वजह है, वो स्केप ज़्यादा होता है क्योंकि तो साइंसदान है ना, मुबशिर साहब ये कह सकते हैं कि हम उन चीज़ों को प्रिजर्व करेंगे, लेकिन कमर्शियल उनको नहीं चला सकते हैं। हमारे पास ज़मीन तो सुकड़ती जा रही है। अगर हम अमरी को करेंगे कि अमरी का खरीदार नहीं है, अगर हम दूसरी प्रोडक्ट, सारे लोग हैं सर, ज्यादा नहीं है जो ढूंढते हैं अभी भी। अब ज्यादा जो डिमांड है, अब इस वक्त जो ज्यादा डिमांड है, इस वक्त डिमांड ये जो नई वैरायटी। फिर मैं कथा कलामी मैं मार्केटिंग की ही बात करूंगा। अगर अमरी की पैदावार हो और फिर अच्छे पैमाने पर उसकी मार्केटिंग की जाए, क्योंकि यूएसपीज तो होने हैं ना। जब कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाता है तो वो अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स तो बताता ही है ना। अमरी को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन कमर्शियल सतह पर ले जाना, क्योंकि अब आपने देखा कि हाई डेंसिटी की वैरायटीज कमर्शियल सतह पर आप रखें कमर्शियल वैरायटीज को, लेकिन साथ साथ में इसको प्रिजर्व कर रहे हैं। जो हमारे खनमू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, हम जीन बैंक के लिए हम हर एक वैरायटी को वहाँ प्रिजर्व कर रहे हैं। और वाकई इसमें यूनिवर्सिटी का भी एक रोल है कि ये जो हमारी पुरानी वैरायटीज़ हैं, चाहे उसमें क्यूनिस है, वो खुर है, फोकला है, चुम्बोरा है, उनको हमने प्रिजर्व करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं उस चीज़ को। बहरहाल एजाज साहब, आत्मनिर्भर अभियान की बात करेंगे अभी। ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में मुझे बताइए और हमारे नाजरीन को, हमारे देखने वालों को बताइए कि ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है और हॉर्टिकल्चर में इसका कितना इंपॉर्टेंस है। ऑपरेशन ग्रीन्स, जैसे मैं स्टार्ट में अर्ज किया कि ये एक इम्पॉर्टेंट ये एक स्टेप है, एक स्कीम है। जब कोविड-19 मार्च में यहाँ से वो उसका वायरस हो गया, तो उस वक्त गवर्नमेंट ने कहा कि ये चूँकि डिस्टर्ब सब सिस्टम हो गया, तो इसको हमने एक सपोर्ट देने की ज़रूरत है। तो उस वक्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका अनाउंसमेंट किया। आत्मनिर्भर अभियान में आता है ये ऑपरेशन ग्रीन्स। तो इसमें टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी अपनाई गई, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में यही कहा गया कि अगर हम अपना सेब कोल्ड स्टोर में रखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देगी। अगर हम अपना सेब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, सब्सिडी ये कोल्ड स्टोरेज की चार्जेस पे देगी, हायरिंग चार्जेस, अगर हम हायरिंग रखेंगे 3 महीने वहाँ सेब रखेंगे तो उसमें 50% जो है सब्सिडी वो सरकार देगी। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 100 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हमें लेना पड़ेगा अपना फ्रूट बाहर मंडीज़ में यहाँ से, तो उस पर भी 50% ट्रांसपोर्ट चार्जेस मिलेंगे। ये तो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। इसी तरह लॉन्ग टर्म मेजर्स भी हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स में यही है इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन, जिसमें कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिंग, जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ दिस एपीओज करते हैं, या मार्केटिंग, कंजप्शन पॉइंट्स या एग्री लॉजिस्टिक, ये सब चीज़ें आती हैं, ये जो हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म। लेकिन शॉर्ट टर्म पर हम बात करेंगे इस वक्त की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त करने की ज़रूरत है। हमने थ्रू पेपर्स भी ये दिया है लोगों की जानकारी के लिए, कल के सब अखबारों में होगा ये, कि हम चाहेंगे कि लोग इसकी रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी करनी है। इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसके वेबसाइट पर लॉगिन करना है। यानी जो भी इस स्कीम से फ़ायदा लेना चाहता है MOFPI.nic.in पर लेकिन जाना है। इससे पहले बात ज़रूरी ये है कि कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन। यानी यहाँ पर फ्रूट ग्रोवर जो हैं वो एप्पल ग्रोवर भी है, वो पियर ग्रोवर भी है, नाशपाती भी है, आड़ू है, गिलास है, या फिर ड्राई फ्रूट जैसे हैं। तो ये कौन सा मेवा है जो इस के दायरे में आता है? इसमें इंडिविजुअल फार्मर भी कर सकता है या ग्रुप ऑफ फार्मर्स भी कर सकते हैं, या जो हमारे FPOs हैं, अब यहाँ FPOs अभी नहीं बने हैं तो अभी बना रहे हैं FPOs, या जो फेडरेशंस हैं, मार्केटिंग फेडरेशन। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। वो भी करते हैं जो इस ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं जी, वो रजिस्टर किसी भी मेवे के लिए किया जा सकता है, किसी भी फ्रूट के लिए नहीं। हमारे पास या इसमें कुछ हमारे पास कुछ नॉमिनेटेड फ्रूट्स हैं। अभी हमारा एप्पल है,
अभी हमारा आलमंड है, बादाम है और अभी हमारा पियर है जी, जो अभी इन्होंने इसमें किया है एनलिस्ट। तो इसमें ये भी गुजारिश है कि अगर कोई रह गया है तो उसको स्टेट या यूटी सरकार रिकमेंड कर सकती है कि ये रह गया है तो उसको भी ऐड किया जाएगा इस चीज में। तो इसमें यही है कि कोई भी फ्रूट अगर इसमें आपको लगता है कि इसको ऐड करना चाहिए, बिल्कुल वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से मिनिस्ट्री ऑफ फूड इंडस्ट्री को रिकमेंड कर सकता है और वो एनलिस्ट हो सकता है अगर रह गया है कोई फ्रूट, वो भी इसमें है गुजारिश। तो इसमें हमने लॉग इन करना है mofpi.nic.in पर। इसमें हम जब लॉग इन करेंगे तो उसमें हमें नेम ऑफ एप्लीकेंट आएगा, उसके डिटेल्स आएंगे, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, डिटेल्स वहाँ पे देगा, वो डिटेल्स आएंगे आगे, ऑनलाइन ही होगा। और उसमें ये भी आएगा कि एलिजिबल क्रॉप क्या है, प्रोडक्शन क्या है, या इंडिविजुअल फार्मर है, एफपीओ है। अभी शॉर्ट टर्म जो कलील मुद्दती फवाइद इसके हैं, तो जो तवील मुद्दत लॉन्ग टर्म फवाइद इसके हैं वो क्या क्या हैं? लॉन्ग टर्म में मैंने कहा कि हम जो कहते हैं हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है एफपीओज की। जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अभी बने नहीं हैं, ये बनाने हैं, इनके बनाने में खर्चा लगेगा, इनको ट्रेनिंग देने में खर्चा लगेगा। जो हमारी क्वालिटी प्रोडक्शन है, क्वालिटी बनानी है, इसकी मेयार से ही करनी है, अच्छी क्वालिटी का बनाना है, उसमें खर्चा लगेगा। या जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट है, कोल्ड स्टोर है, फूड प्रोसेसिंग है, वॉलनट प्रोसेसिंग है, दूसरे जो हमारे पैकेजिंग है, कैनिंग है, उसमें भी इसको सपोर्ट मिल रहा है। और इसमें 50% मिलेगा अंडर दिस ऑपरेशन ग्रीन। पहले तो 40% ही मिलता था, लेकिन अब 50% मिलेगा फॉर एफपीओज और फॉर एसटी एससी जो है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनको 70% इससे मिलेगा। कोई भी इससे ऑपरेशन ग्रीन से और इसका मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 करोड़ है जी, वो ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकता है, mofpi.nic.in पर जा सकता है, वहाँ इसको जानकारी मिलेगी। और इसी तरह इनका हेल्प डेस्क है जी, अगर कोई क्लैरिफिकेशन या कोई प्रॉब्लम आती है इनको, इनका हेल्प डेस्क है helpdesk@fpi.gov.in जी, या ये कॉल कर सकता है 1800111175 पर या 9311894002 पर, ये क्लैरिफिकेशन कर सकता है। इसी तरह अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है रजिस्ट्रेशन करने में ऑनलाइन, तो उसमें ये टोल फ्री पर कर सकते हैं, जिसमें 011-264-065557 पर भी कर सकता है। इसमें टाइम दिया गया 9 बजे से सुबह, उम्मीद है कि हमारे 6 बजे जो नाजरीन हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उन्होंने ये नंबर नोट किए होंगे। तो एजाज साहब, हमारे यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर का शोबा है इसको इतना फ़रोग मिला है, इतना तरक्की पाई है इस शोबे ने कि इक्तिसादियात में जो है, इक्तिसादियात में इसका इतना इम्पोर्टेंस है कि नंबर 1 है हमारे इकोनॉमिक पोजीशन के लिए। तो लेकिन जहाँ हम हॉर्टिकल्चर की बात करती हैं तो दिमाग में और जो भी सोचेगा तो सेब उसके दिमाग में आएगा, सेब के अलावा कुछ नहीं। लेकिन हम बाकी जो फ्रूट्स हैं उसकी कल्टीवेशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? जैसे आड़ू है, उसको हम गीला किनो है, हम कीवी कर सकते हैं, हम लेमन कर सकते हैं, बहुत सारे कुछ घरेलू सतह पे करते हैं, कुछ फार्मर्स ने किया है। लेकिन क्या महकमे की जानिब से मुझे लगता है कि उनको कुछ एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है ताकि इस प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके? इससे पहले मुबशिर साहब कि मैं इस का जवाब दूं, मैं ये गुजारिश करूंगा कि इसमें भी एक कंडीशन है जो हम ऑपरेशन ग्रीन कहते हैं जी, कि ऑपरेशन ग्रीन इसलिए बनाया गया है कि अगर ग्रोवर का नुकसान होता है, लॉस होता है, तब ये अवेल कर सकता है ये बेनिफिट। अगर उसका ठीक रेट आता है तो फिर तब तो ये क्वालिफाई नहीं करता है। तो यही इसमें कहा गया है कि अगर इसका 15% पिछले साल से रेट डाउन होता है तब ही क्वालिफाइज फॉर द बेनिफिट। तो जहां तक आपने कहा दूसरी वैरायटीज का, तो उसमें मेरा जवाब यह है कि हमारे पास बिल्कुल एक प्लान बना है। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ एप्पल पर काम कर रहे हैं जी। 19 यहाँ फेब 2019 में मैंने जब ज्वाइन किया तो चूंकि आई बिलोंग फ्रॉम फार्मर कम्युनिटी, मैंने स्टार्ट से ही कहा कि हमने नर्सरी पर काम करना है और हमने एप्पल के बगैर जो दूसरे यहाँ वैरायटीज़ हैं, वालनट है, आलमंड है, पियर है, पीच है, चेरी है, प्लम, एप्रिकॉट, ये तो जो भी उन पर काम करना है। लोग भूल गए हैं और मुबशिर साहब हमने, लेकिन हम कीवी वगैरह जैसे लेमन है बिल्कुल हमने ये चीजें भी हमने इंपोर्ट की हैं हाई डेंसिटी वाली इटली से, और हमने इनके मदर ऑर्चार्ड बिल्कुल बनाए हैं। आज की डेट में आप जा सकते हैं खनमो में, सेंटर ऑफ एक्सलेंस ज़ोरा खनमो में,
आप देख सकते हैं 10-10, 15-15 कनाल के हमने मदर आर्चर्ड बनाए हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम कश्मीरी कीवी भी मार्केट बिल्कुल करेंगे। इंशाल्लाह कीवी भी हमारे पास हैं फार्मर्स, हमारे पास ये जैतून के फार्म भी हैं उड़ी में, हम उन चीज़ों पर भी इंशाल्लाह काम करें। यूसुफ साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे जिस अभी बात की हमने ये बाकी जो हमारे मेवे हैं जैसे कीवी वगैरह, लेमन, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमने जो पैडी फील्ड्स थे जहाँ पर धान उगाई जाती थी उनको भी हमने सेब के बागों में कन्वर्ट किया है? आपको नहीं लगता है कि जो नई नस्ल है, नौजवान हैं जो इस तरफ माइल हैं, उनको हम राग़िब करें कि वो सेब के अलावा या सेब के बगैर ये जो मेवे हैं उनकी काश्त करें, उनकी पैदावार बढ़ाएं? ये बहुत बड़ी एक इशूमेंट है जी। अगर आप देख लीजिए कि हमारे जो भी ये वेराइटीज़ है जी, कीवी हो या जैतून का तेल हो, बिल्कुल, या हमारे इस वक्त ऑरेंज संतरे हैं, हमारे आम यहाँ बनता है, लीमू यहाँ बनता है, यहाँ पर लीमू यहाँ उड़ी में बनता है। हमने ये दरख्त लगाए अपने इस खेतों में और इतने मुफीद हुए हैं, कीवी इतना अच्छा निकला है, मुझे घर में अच्छा है, मुझे अपने घर में इसमें लगा अपने बाग में हमारे, तो उसको हम कमर्शियल उस पे ला सकते हैं। अभी तक ये लार्ज स्केल पर नहीं है। अब हमारे एजाज साहब जो है ये काफी मेहनत करते हैं इसमें कि ये इस वक्त दौड़ धूप इसकी काफी है, वक्त की कमी ये की मुझे वजह से हम लगता है ज़्यादा अगर इसमें गवर्नमेंट कोई पावर दे तो इंशाल्लाह इसको हम इस हार्टिकल्चर को इसमें हम ये जो वैरायटी है इसको हम बहुत अच्छी बहुत तरीके शुक्रिया। से। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है। एजाज साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मसरूफियात के बावजूद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यूसुफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।